Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Sarang Kumar Jain sir with us. He is the principal of Rajiv Gandhi College of Pharmacy, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia. Thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Yes, you. Sir, you have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? And first of all, I would like to thank College Dunia for giving me a chance to elaborate myself in the education sector, especially on pharmacy education. So I am in this field since last 16 years. I am serving my duties as an academician in this field, and throughout my career, this is one thing I want to mention everywhere that this is the field where I have entered here as not a and not by chance. I am entered here as by my choice. So throughout my career, I have started my career as an assistant professor, and I have gone through several phases of my academic journey. After that, I am here working as a principal of this institute. So my main aim is to carry forward my knowledge throughout I have gained throughout my career to pass the students. They are coming from different states, and I have to elaborate one thing very enormously to everyone, that if you know about the condition of today's education sector, that you are entering into the kind of field that is very noble profession. And we have gone through COVID-19 very few days बैक. सो आप सभी ने भी देखा होगा कि कोविड-19 में अगर कोई दो चीज़ें मतलब ओपन थी एक तरह से देखा जाए, एक किराने की दुकान और दूसरा एक मेडिकल. तो अगर ये चीज़ देखा जाए कि मतलब अगर आदमी खा भी रहा है तो उसको बीमार भी पड़ रहा है, तो दोनों ही चीज़ों की जिस तरह से ज़रूरत है अगर उसको, तो हम ऐसे प्रोफेशन में क्यों ना जा कर के अपना करियर बनाएं जो कि हमें अपनी ह्यूमैनिटी से भी जोड़े रखे और हमें उससे कुछ अच्छी अर्निंग्स भी हो जाए. तो मैं आने वाले स्टूडेंट से मेरा सजेशन ये रहता है कि आप ऐसे कैरियर में, ऐसे एजुकेशन सेक्टर में आप एंट्री ले रहे हैं जो कि आपको बहुत सारी जगहों पर ले जा करके एक्सप्लोर करेगा और आप हमेशा आगे ही की ओर ही जाएंगे इसमें. और फार्मेसी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक नोबल प्रोफेशन है. नोबल प्रोफेशन के अलावा जिसमें आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है जिसमें, और आप दवाइयों की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, दवाइयों की आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन देख रहे हैं. तो आप अगर कल को आप स्वयं का व्यवसाय भी चालू करते हैं या किसी हेल्थ फील्ड से जुड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, तो आपको ये इसमें कई तरह की चीज़ों पर जा करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके सर. Okay, sir. So, being the principal of Rajiv Gandhi College of Pharmacy, what is your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style, sir? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को बैकअप करके चलता है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप नॉलेज जो आपके पास है उसको कहीं लेकर के नहीं जाएंगे. अगर आप नॉलेज आप अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं तो वही नॉलेज वो आगे आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करेंगे. आगे आने वाली पीढ़ी से मेरा तात्पर्य है जो कि आज के जो एजुकेशन के सेक्टर में बच्चे एंट्री कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन आज मतलब कई बच्चों का ऐसा मानना होता है कि हम कॉलेज नहीं भी आएंगे तो भी किताबों से पढ़ लेंगे. लेकिन किताबों से जो पढ़ा हुआ ज्ञान रहता है वो बहुत सीमित होता है. जब तक हम उसको क्लास में लेकर के नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो वो उस चीज़ को हम कहीं भी आगे अपने नहीं लेकर के जा सकते हैं. तो मैं खुद एक रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ. मेरा हर्बल एक्सप्लोरेशन रहा है हर्बल फील्ड में. मैं अपनी टीम को भी कई सारे तरीक़ों से मोटिवेट करता हूँ कि जो आप नॉलेज है आप मुझसे भी सीखिए, और मैं हमेशा उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ वो ताकि वो अपने नॉलेज को आगे पास आउट कर सकें उस चीज़ को. Right, sir. And any insights into how your college could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? Yeah, since last 16 or 17 years that we are running this institute, and our main motive is to give quality education to student. आज के समय में अगर देखा जाए तो हम सबसे कम भी हमारा इंस्टीट्यूट ही ले रहा है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का जो मोटिव है एक्सीलेंस इन एजुकेशन. और एक्सीलेंस इन एजुकेशन तभी आता है जब आप हर तबके के बच्चे को लेकर के साथ में आगे बढ़ सकते हैं.
तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कई बच्चों को स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा इन हाउस भी हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप अगर गरीब परिवार से हैं या ऐसे परिवार से हैं जहां आप अच्छी परिस्थितियों से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अगर पढ़ने की ललक रखते हैं तो हमारे मैनेजमेंट के द्वारा उनकी फीस में भी काफ़ी हद तक डिस्काउंट किया जाता है। That's really great, sir. And what do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? अगर एक तरह से देखा जाए तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा रोल है, मैं पहले भी मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई है कि देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर मैं जो भी ज्ञान मुझे अभी तक मुझे अपने टीचर से मिला हुआ उसको मैं अपने अंदर ही रखूँगा तो मैं उसको कहीं ले करके नहीं जाने वाला हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रोल यही रहता है कि जो भी है मैं बच्चों से टाइम टू टाइम उनसे इंटरेक्ट भी करता हूँ, अपनी टीम से भी इंटरेक्ट करता हूँ। तो मेरा यही मानना रहता है कि आप बच्चों को जितना ज़्यादा सिखाएंगे, जितना ज़्यादा क्लास में लेकर के आएंगे। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले चंद्रमा में जो लैंडिंग हुई है तो उसका बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब कोई एक टीचर कक्षा में पहुंचा होगा तब जाकर के आज चंद्रमा अपनी चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुंचा है। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर एक टीचर आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहा है तो आप उनकी मेहनत को आप अंदर लीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप आए कॉलेज अटेंड तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन अगर अटेंड करने के बाद अगर हम कुछ गेन करके जा रहे हैं तभी हमारे उस दिन की सार्थकता बनी रहेगी। Right, sir. And what do you think should be the college's top priority over the next 10 years? देखिए आज का जो समय चल रहा है, जिस तरह से कई सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो अगर देखा जाए मार्केट में अगर कई सारी दुकानें हैं लेकिन सिर्फ एक ही दुकान चल रही है तो उसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। तो हमारा भी यही मेन मोटिव है आज के समय में कि भले ही कुछ भी हो जाए, कितने भी कॉलेजेस आ जाएं, लेकिन अगर हम क्वालिटी एजुकेशन कम फीस में बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं तो बच्चों के लिए भी बेनिफिटेड रहेगा और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी बेनिफिटेड रहेगा वो चीज़। Okay, sir. And what would you like people to know about your college that they may not know? जैसे हमारे कॉलेज का जो मोटिव है एक्सीलेंस इन एजुकेशन, एंड थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस कॉलेज वी आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंस इन एजुकेशन in the field of pharmacy, in the field of management, in the field of engineering, different courses we are running since last 20 years. And the main motive of our society is to provide continued good education to everyone, a good and quality education in affordable rates. Okay, sir. Right. And what are some of the biggest challenges you see both for higher education in general and for your college specifically? This is very interesting question because right now the kind of challenges we are facing is that the kind of students entering into the field of pharmacy as well as in other courses, they want to learn but they don't know how to explore ourselves in the field of education, in the field of medical, in the field of marketing, in the field of different fields. So उनको ये तो पता है कि हमें इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, लेकिन उन्हें गाइड करने वाले जो लोग हैं शायद आज के समय अगर देखा जाए तो गाइड की जगह मिस गाइड करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप एक बार जहाँ भी बच्चे को एडमिशन लेना है पहले उसकी मनोस्थिति को समझें। अगर वो मेडिकल में जाना चाहता है, अगर वो इंजीनियरिंग जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उसमें एक बार आप भी इंटरेस्ट लें। ये नहीं कि बच्चे को बोल दिया आपने कि बच्चा कह रहा है हमें फार्मेसी करना है तो आपने उसको फार्मेसी। आप भी एक बार सोचिए कि आप बच्चे को क्या कराना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की ही थॉट प्रोसेस से ही मिलकर के बच्चा आगे बढ़ेगा। कल को अगर बच्चे ने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया पर आप नहीं चाहते थे, या बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया लेकिन आप नहीं चाहते थे, तो क्या होगा? नुकसान दोनों का ही होगा। क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है जब बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार मैंने अपने पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानी। तो मेरा ये मानना है कि जितना पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व रहेंगे बच्चे की एजुकेशन में, बच्चे को उतना ही बेनिफिट मिलेगा। Right, sir. And my last question to you is, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? डेफिनेटली, क्योंकि आज का जो यूथ है वो ये बहुत शॉर्टकट में सक्सेस पाना चाहता है, और मैंने ये देखा सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मुझे भी इस फील्ड में आज 16-17 ईयर्स हो गए हैं। मैंने अपना कैरियर लेक्चरर की पोस्ट से स्टार्ट किया, फिर मैंने धीरे धीरे अपने को अपग्रेड किया, मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया, PhD किया, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाता गया, तब जा करके मैं इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन आज की यूथ को क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हमें पढ़ना भी नहीं पड़े, मेहनत भी नहीं करना पड़े और डिग्री मिल जाए। तो ये ऐसी डिग्री किसी भी काम की नहीं रहती है आज के समय में। तो मैं यूथ को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लें, जो भी काम आगे करना चाहते हैं उसको पूरी तन्मयता से करें, क्योंकि देखिए फीस तो पे करना ही है, फीस पे करेंगे, लेकिन अगर आप
आप मार्केट में भी जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, हम सब्जी घर में ला करके नहीं रख देते खराब होने के लिए। सिंपल सी बात है, आप यहाँ भी पे करेंगे या कहीं भी पे करते हैं, तो पे करने के बाद अगर आप कॉलेज ही नहीं आएंगे, अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं उस फी को पे करने का। और सफलता हमेशा हार्ड वर्क से ही मिलती है, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो मेहनत करने से ना डरें, और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारे करियर के बेटरमेंट के लिए अच्छा होगा। Well said, sir. And I am sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. And thank you so much for giving your valuable time to us and sharing your thoughts, sir. Thank you. Thank you so much for giving me an opportunity to speak in front of you and sharing my thoughts. Thank you, sir.